गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। Now, what is probability? Basically, it is a concept which numerically measures the degree of certainty of occurrence of events. For example, जैसे आज will today be today day is cloudy or not, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज रेन होगी या नहीं होगी, है ना। तो ऐसे टाइप के इवेंट्स जो है ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम चेक करते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की। सो लेट्स राइट डाउन प्रोबेबिलिटी। इट इज ए कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट which numerically measures the degree of certainty of occurrence of events. ठीक है। Now to understand probability we need to conduct experiment. Now, what is an experiment? Experiment. It is an operation which can produce some well-defined outcomes. Some well-defined outcomes. Now, what is random experiment? Random experiment वो है जिसके outcomes जो हैं they are well known in advance, but which outcome will occur is not known. No, random experiment is an experiment whose all possible outcomes are known in advance. Are known in advance, but which of them will occur is not known. ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट के, जैसे टॉसिंग अ फेयर कॉइन। रोलिंग एन अनबाइस्ड डाइस। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या है? Sample space is collection of all possible outcomes. It is collection of all possible outcomes. ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट tossing a fair coin. When a fair coin is tossed, now sample space is either head or tail. ऐसी एक्सपेरिमेंट 2,
holding an unbiased die. So in this case, sample space will be S1, S2 sample space. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस होते हैं डाइस के, तो उनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम कार्ड्स को भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो इसके अंदर हमारे पास देयर आर 52 कार्ड्स इन टोटल। ठीक है, आउट ऑफ देम 26 आर रेड and 26 are black cards. Now, out of these 26 red, 13 are diamonds. ठीक है, and 13 are hearts. 13 are clubs. 13 are spades. इनको हम बना लेते हैं इस टाइप से, ये डायमंड्स। hearts, clubs. सॉरी, ये बनेगा हार्ट। So this is spades and clubs. Spades. ठीक है, अब इन सब में टोटल 13 है सीक्वेंस में, 1 से लेके 13 तक। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10. Then comes Jack, 11, Queen, 12 and King. ठीक है, हर एक में ऐसे रहते हैं। सो अब इसके अंदर फेस कार्ड्स कितने होंगे? हर एक में 3 फेस कार्ड्स हैं। 3 into 4, 12 फेस कार्ड्स आर देयर। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके पास। 26 रेड है, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, इसमें से 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स। इस तरह से कार्ड चलेंगे। इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कभी प्रोबेबिलिटी का, तो हम देखेंगे भी कैसे इसको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कैसे हम इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? Probability of occurrence of an event. Probability of occurrence of an event. This is written as PE. This is equal to number of outcomes favorable to E upon total number of outcomes. Outcomes favorable to event upon total possible outcomes. कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? ठीक है, so remember that probability lies between this.
So if probability is equal to 0, it means uncertain event. Sorry, impossible event. मतलब वो possible नहीं है. If probability equals to 1, it means certain event, sure event. ठीक है जी. Equilikely events. Now, two or more events are said to be equilikely. Equilikely तभी है जब कोई भी उनमें से हो सकता है. ठीक है, कोई भी एक हो सकता है उनमें से और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो. If none of them is expected, if none of them is expected to occur in preference to others. Equilikely event have same probability. Equilikely events have same probability. ठीक है जी, इनकी probability same है. Equilikely events. Clear? Now complementary events. Now, two events are said to be complementary if they cannot occur simultaneously. इकट्ठे occur नहीं होंगे वो. अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा. Two events are said to be complementary if only one of them occurs at a time. At a time. ठीक है, तो आगे देखते हैं ये. अब हम इसमें क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं हम इसके. Now coin is tossed once. What is probability of getting head? हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है जी. तो इसमें when a coin is tossed, which is unfair of course, when a coin is tossed, either head or tail comes. Therefore ऐसे इसको डिफाइन कर लेते हैं. E is an event head occurs. ठीक है जी. अभी इसमें सैंपल स्पेस देखते हैं क्या है. सैंपल स्पेस में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स तो हमें पता ही है 2 है और हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1. प्रोबेबिलिटी इज 1/2.
तो ऐसी टेल आने की भी सेम ही प्रोबेबिलिटी है, तो वो इक्वी लाइकली इवेंट है, टेल आए या हेड आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A die is thrown once. What is probability of getting a prime number? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सैंपल स्पेस। सबसे पहले सैंपल स्पेस देखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। सो ई इज एन इवेंट। ई क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर। तो ई का सैंपल स्पेस क्या आएगा वो देख लेते हैं। प्राइम नंबर 2 3 5। So probability of E is NE by N of S sample space. तो E में कितने नंबर है टोटल? 3। सैंपल स्पेस में कितने नंबर है? 6। आंसर इज 1/2। चेक कर लीजिए बेटा। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे फिर हम। सैंपल स्पेस लिखिए, जो इवेंट है गेटिंग अ प्राइम नंबर, उसमें देखिए प्राइम क्या है। 1 is neither composite nor prime. 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। 2 3 and 5। 3/6। 3 पॉसिबल है और टोटल 6 पॉसिबल है ऊपर सैंपल स्पेस में। 1/2। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। A die is thrown once. What is probability of getting other than 4? मतलब 4 के अलावा कुछ भी आए, 4 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आए। आइए इसको देख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस चेक करते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया हमारे पास। E is an event getting number other than 4. Therefore E के पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो क्या है? 4 की जगह कुछ भी है। 1 2 3 5 6। ठीक है, therefore probability of E is number of outcomes favorable to E by total। टोटल कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 5। तो ये आएगा probability of getting a number other than 4 is equal to 5/6। चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। A die is thrown once. What is the probability that it shows a 3? ठीक है, 5 and
odd number. An odd number, a number greater than 4. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इसको. डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस तो आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6. ठीक है जी, अब एक एक करके देखते हैं. यहाँ पर E1 3 is shown. E1 में सिर्फ 3 आएगा यहाँ पे ऐसे. तो अगर हम PE पता करेंगे, PE1, तो उसमें एक ही है सिर्फ, और टोटल कितने हैं हमारे पास 6. ठीक है, दिस इज 1/6. नेक्स्ट है E2, 5 इज शोन. तो E2 के अंदर हम शो करेंगे खाली 5 करली ब्रैकेट में. तो इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/6 ये आ गया. थर्ड, एन ऑड नंबर. E3 odd number. This is 1 3 5. अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं इसकी, देखिए क्या वैल्यू बनती है उसमें. PE3, number of terms favorable to E3 by NS. This is 3/6. Answer is 1/2. ठीक है जी. नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ, E4, नंबर ग्रेटर देन 4. E4 नंबर ग्रेटर देन 4 है 5 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 फेवरेबल टू E4 बाय टोटल. सैंपल स्पेस में कितने हैं 6. E4 कितने हैं 2, 1/3. ठीक है जी, ये आ गया. नाउ फिफ्थ, 2 coins are tossed simultaneously. इकट्ठा उनको फेंक रहे हैं. What is probability of getting at least one head? कम से कम एक हेड. ठीक है जी. तो इसमें हम इसको ऐसे करेंगे. सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं. ठीक है, हेड आ सकता है दोनों में, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ई है दैट इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. कम से कम एक हेड तो आए. दोनों भी आ सकते हैं. तो ई में हमारे पास क्या ऑप्शन बनती है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए. हेड टेल, टेल हेड, कम से कम एक हेड या दोनों हेड. ठीक है जी. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई NE/NS. कितनी पॉसिबल ऑप्शन है NE में 3 और NS में कितनी है 4. गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए. क्लियर. अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो ये आता है HT या TH. दो पॉसिबिलिटी होती है, तो 2/4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड, कोई भी हेड ना आए, TT, 1/4.
ठीक है, ऑप्शन देख के ऐसे करेंगे। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 unbiased coins are tossed। 3 unbiased coins हैं which are tossed simultaneously, इकट्ठा। Find the probability of getting exactly 2 heads, at most 2 heads। So find the probability of getting exactly 2 heads, at the most 2 heads। आइए अब इसमें देखते हैं। Because 3 unbiased coins है, sample space, ठीक है, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है, 8 पॉसिबल आउटकम्स। कैसे पता चलता है ये? क्योंकि एक कॉइन है उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 2। 3 कॉइन्स अगर साथ में हो रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इस तरह से आ जाता है। तीनों हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, ऐसे ऐसे, या THH, या फिर TTH, THT, HTT, ठीक है, या फिर तीनों टेल। ये बनता है हमारे पास सैंपल स्पेस। नाउ E1 getting exactly 2 heads। सो E1 जो है उसके अंदर क्या आ जाएंगे? एग्जैक्टली 2 हेड आएंगे, HHT, HTH, THH, एग्जैक्टली 2 हेड है। Probability of E1, possible outcomes E1 by NS, this is 3 by 8, ठीक है। ऐसे ही E2 at most 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आएंगे, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 0 हेड होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, कम से कम 0 हेड। TTT, ठीक है, 1 हेड। THT, TTH और THH, HTH, HHT, या हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फेवरेबल टू E2 बाय NS ऐसे आएगा। कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 2 हेड्स। अच्छा इसमें 1 मिनट, ये तो आएगा ही नहीं इसमें। अच्छा सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड और कम से कम 0। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 1 है और ये 2 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए इसके अंदर ये। तो दिस इज कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 7, और ये हमारे पास टोटल कितना है? 8। तो ये आ जाता है। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। नेक्स्ट हम कार्ड पे देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled pack।
52 cards. What is probability of drawing a king? ठीक है जी, कैसे इसको हम करेंगे? सैंपल स्पेस में तो 52 कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स 52. E is the drawing a king. किंग कितने हैं टोटल आपके पास? 4 किंग है, ये देखिए क्लियर होगा ना यहाँ से. 4 किंग्स आर देयर. किंग ये किसमें आएगा, किसमें आएगा, किसमें और ये किसमें? तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक किंग्स. 4 kings, 2 red and 2 blacks. Probability of E, NE by NS. टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 52 कार्ड्स का, जिसमें किंग्स कितने हैं? 4. तो आंसर इज 1/13. दिस इज PE. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. मतलब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ करना है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? दैट कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड. ठीक है जी, तो आपको ध्यान होगा फेस कार्ड हमने यहाँ बात की थी. देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं? 12. बहुत ही सिंपल, अगर आपको ये क्लियर है तो. नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, हर एक में 3 होते हैं इनटू 4 सूट है. सूट मींस ये 4 सूट्स, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड्स, दीज आर कॉल्ड सूट्स. E is drawing a face card. Therefore, probability of E, probability of drawing a face card, NE by NS. टोटल तो आपको पता ही है 52 कार्ड्स हैं, जिनमें से 12 कार्ड फेस कार्ड है. तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 3 डिवाइडेड बाय 13. 4 से डिवाइड हो जाएगा ये. 3 इंटू 4 12 एंड 13 इंटू 4 हो जाएगा 52. ठीक है, चेक कर लीजिए इसको. आई होप ये क्लियर होगा आपको. हम बेसिकली कॉइन्स के ऊपर करते हैं प्रोबेबिलिटी, डाइस के ऊपर करते हैं, और कार्ड्स. ठीक है, आगे बढ़े इस पे. नेक्स्ट पे आते हैं. अमित ड्रॉज a card from a well shuffled deck of 52 cards. What is probability? What is probability that he draws a queen, an 8, कोई भी 8 हो सकता है वो, a spade, a black card,
6 of clubs. 6 of clubs. ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं. टोटल नंबर, all possible outcomes. That is 52. आप यहां से स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ क्वींस देखिए कितनी है. There are 4 queens possible. Therefore, probability of getting a queen this is 4 by 52. 1 by 13. Second, and 8. Number of 8s. 8 कितने पॉसिबल हैं? Again 4. Probability getting 8. Getting an 8. Again this is 4 by 52. 1 by 13. ठीक है ना? Now third में spade. Number of spades we have to check. How many spades are there? Spades आपको क्लियर है कितने हैं? 13 spades are there. यहाँ पे किया ही था, देख लीजिए. स्पेड्स कितने हैं? 13 स्पेड्स होंगे ना. हर सूट के 13 है टोटल कार्ड्स. So number of spades equal to 13. Now probability of getting a spade is equal to 13 by 52. 1 by 4. ठीक है जी. Then comes black card. Number of black cards. ठीक है, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल? 26. Probability of getting a black card (26 by total sample) कितना है? 52. This is half. Fifth, 6 of clubs. नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ 6 of clubs. 6 of club तो एक ही होगा, ठीक है ना? एक ही है सिर्फ, 1. Therefore, probability of getting 6 of clubs is equal to 1 by 50. टोटल तो 52 है ना कार्ड्स, उनमें से हमें एक करना है अलग. क्लियर है ना सारे? ये अगर हमें पता है कार्ड्स के बारे में तो हम आराम से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे. तो नेक्स्ट पे आते हैं हम. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of 52. Find probability of getting a king. Find the probability of getting a king of red suit. A queen of black suit. A jack of hearts. A red face card.
ठीक है जी, इसको करते हैं ये। नंबर 1 इसमें है किंग ऑफ रेड सूट, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड सूट। रेड किंग कितने हैं टोटल? 2। देयर आर 2 रेड किंग्स पॉसिबल, क्योंकि ये देखिए ये 26 रेड है, इसमें एक किंग आएगा, इसमें भी एक किंग आएगा, हार्ट में भी और डायमंड में भी। तो देयर आर 2 पॉसिबल किंग्स, so therefore probability of king of red suit, this is 2 by 52, 1 by 26. Second, queen of black suit, number of queens of black suit. ऑफ कोर्स ये भी 2 हैं, क्योंकि 2 टाइप के सूट हैं विच आर ब्लैक, एक क्लब और एक स्पेड्स, तो इसमें भी एक क्वीन आएगी, इसमें भी एक क्वीन आएगी। टोटल पॉसिबल क्वींस आर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन ऐसे समझ लेते हैं। अगेन दिस इज 2 by 52 which is 1 by 26. Then comes third, jack of hearts, number of jack of heart. of course heart का तो एक ही जैक होगा 1. probability of jack of heart, this is 1, एक ही होगा out of 52। ठीक है जी। फोर्थ लास्ट, इसके अंदर क्या है? रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। तो आपके पास जो किसी भी सूट में जो फेस कार्ड होते हैं वो 3 होते हैं, तो इनटू रेड वाले टोटल 26 कार्ड हैं, 13 and 13, दो सूट बनते हैं, टोटल 6 कार्ड बनते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फेस कार्ड जो है, ओके, हर एक में 3 फेस कार्ड हैं। ये 3 रेड है, ये 3 रेड है, फिर 3 ब्लैक है, फिर 3 ब्लैक है, टोटल 6 रेड है और 6 ब्लैक है। तो therefore probability of red face card 6 by 52, ठीक है, 3 by 26 ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। इलेवेंथ है, ये क्लियर था ना आपको? रेड फेस कार्ड कितने हैं? रेड कलर के फेस कार्ड 6 हैं टोटल, 3 हार्ट में होंगे, 3 डायमंड में होंगे। नाउ 11th पे आते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously what is probability of getting 8 as sum of 2 numbers? 8 as sum of 2 numbers that turn up, जो भी दोनों डाइस पे नंबर आते हैं उनका सम 8 होना चाहिए। डबलेट, ठीक है, डबलेट मतलब सेम टाइप आए दोनों पे, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, ऐसे। तो हम सैंपल स्पेस देखते हैं इसका क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है जी, पॉसिबल आउटकम्स क्या है इसके? 1 1, ठीक है ना, दोनों डाइस पे 1 1 आ जाएगा, 1 2,
1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 now 3 1 4 1 5 1 6 1 टोटल बेसिकली 36 आउटकम्स है। मैं सारे लिख ही रहा हूँ अभी। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 this is 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ठीक है। फर्स्ट केस 8 as sum of two numbers। सैंपल इसके अंदर हमारे पास इवेंट जो है वो क्या है, 8 as sum of two numbers। ई का जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनता है, टोटल सम 8 होना चाहिए। तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं 8 के लिए 2,6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 6 आया, 3 5 उसके बाद 4 4 5 3 6 2 ठीक है, ये आ गया। Therefore probability of E is, ये टोटल ऑप्शंस कितनी है चेक कर लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन है, मतलब NE by NS। ये टोटल 36 ऑप्शन है सैंपल स्पेस में और ये 5, तो ये आ जाता है। सेकेंड डबलेट, call it E1 E2, this is doublet occurs, doublet comes। तो हम E2 का अगर सैंपल स्पेस निकालेंगे तो ये आ जाएगा डबलेट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। This is a doublet। So probability of E2, number of possible outcomes in E2 by total number of outcomes in sample space, this is 36 and this is 6, total 6 possibility, 1 by 6। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। थैंक यू।